Hey guys, hope all of you are doing great. And as you all know, we are gonna do CBSE Mind Maps Fundamental Unit of Life. ठीक है, इसका first part हमने करा था. And today we are gonna discuss in concise about the cell organelles. We are gonna discuss cell organelles very quickly, and I will tell you how to make the mind map out of it. ठीक है guys, this is gonna be very important session. क्यों? किस perspective से? Because it will tell you guys कि how to make notes. This is very important to understand how to make notes, how to make mind map, because इससे आप quickly revise कर सकते हो before the exam, right? So moving forward guys, you need to decide it is day one, one day or the day one. आप कब start करना चाहते हो? क्या आप अभी start करना चाहते हो कि या आप सोचोगे यार कभी तो start करूँगा? One day I will definitely start. ठीक है? तो guys the whole point is just starting, sitting there and starting to work. That is the whole point over here. So you need to start today itself guys. And without waiting for anything. And guys, Vedantu has got amazing results. If you can see, yes, you can see AIR 43, 208, 227, 290 and 248. So guys, the whole point which I want to tell you over here is that online education is very much in the game, and you can just sit at your home and yes guys, you can be next. So as you can see in the corona ka time, you are not able to go to your coaching, offline coaching and all these things. So here there are some apprehensions कि क्या यार घर पे बैठ के हो सकता है? Yes guys, definitely हो सकता है. इन बच्चों ने किया है तो आप भी कर सकते हो. Yes guys, there is amazing pro subscription available for Vedantu. इसमें क्या होता है? You get more time with us. You get all your doubts solved. ठीक है, यू गेट रेडीमेड नोट्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल की नोट्स, ये वाले नोट्स, वो वाले नोट्स. ठीक है, तो यू विल गेट रेडीमेड हैंडमेड नोट्स ऑफ द टीचर, वॉट एवर ही और शी इज राइटिंग इन द क्लास, यू विल गेट इट ओवर देयर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द गाइडेंस, है ना. गाइडेंस किस चीज़ का? कि गाइस देखो, मेन चीज होती है कि टीचर के टच में रहना. एंड बाय टीचर के टच में रहना, आई एम नॉट टेलिंग यू मतलब स्कूल के टीचर्स मतलब दे आर गुड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लाइक वी विल हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर बाय 10 to 15%. ठीक है, वी आर गोना हैव क्रैश कोर्सेज, वी आर गोना हैव रिवीजन कोर्सेज. ठीक है, वी आर गोना हैव सुपर रिवीजन कोर्सेज. तो गाइस ऑल दीज आई हैव सीन इन पास्ट, आई एम डेफिनेटली श्योर कि दिस इज गोना हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट 10 to 15% more marks, 10 to 15 more percentage marks in the coming exams. Yes, guys, you can use this code ARPRO to get the 50% discount guys. Today 24, 25 and 26 पे दशहरा स्पेशल चल रहा है, तो you can get guys 50% discount. समझ पा रहे हो? तो महा डिस्काउंट. If any of your friends, family, were planning to purchase this, I guess this is the best time to go for it. Yes, as I said, your doubts get solved, you get notes for all the things, tests and assignment, periodic tests and assignment. Guys, it is just like additional जब ट्यूशन जाते हो ना, well organized ट्यूशन है ये आपका. ठीक है, मतलब नॉर्मल ट्यूशन जाना, वहाँ पे कुछ करके आना. दिस इज लाइक अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्यूशन विद अ प्रॉपर साइंटिफिक बैकिंग. Yes guys, you can take 1 month, 3 month और 6 month कोर्स. अब तो और कम हो जाएगा, आई गेस पता नहीं कितना होगा, बट या इफ यू यूज दिस कोड ARPRO, yes guys, you can get up to 50% discount this time onwards. ठीक है, तो do make use of it, as I believe कि अप्रैल तक एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन. बट इफ यू फील कि नहीं यार मार्च में ही होगा, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस 3 month सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, उसको बाद में 3 month का एक्सटेंड कर लेना. ठीक है, तो यस गाइस, तो मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, सेल ऑर्गेनल क्या था हमने देखा था, द कंपोनेंट ऑफ द सेल विच मेक्स इट फंक्शनल. ठीक है, तो गाइस कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना. पहले मैं सबका बता देता हूँ ब्रीफली, जल्दी आपको सबका बता देता हूँ कि क्या वो होते हैं, देन वी विल ड्रॉ द माइंड मैप. तो इफ यू कैन सी, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है गाइस? आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल सेल. प्लांट में क्या होता है? प्लांट में सेल वॉल होता है. ठीक है, इट इज लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में भी होता है, बट सेल वॉल के नीचे होता है. वेरी थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन होता है. इसमें पोर्स होते हैं गाइस. सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. तो इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये पता होना चाहिए. It is semi-permeable in nature. The cell membrane is semi-permeable in nature and it is made up of lipids and proteins. I want you to remember these 3 points at least. क्या 3 पॉइंट गाइस? ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद में आता है. इट इज लिविंग, है ना. लिविंग मतलब इट कीप्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये अपना शेप चेंज कर सकता है. ठीक है, एंड इट इज सेमी परमिएबल एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. 4 चीजें. ठीक है, अब ये क्या होता है? इट इज लाइक अ गेट, regulates the entry or
of or exit of certain substances and maintains the shape of the cell. Very good. Then cell wall, again ये नॉन लिविंग है. देखो सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, तभी वेरी इंपॉर्टेंट. मेड अप ऑफ सेलुलोज, फ्रीली परमिएबल. वो सेमी परमिएबल था, सेमी परमिएबल कुछ चीजों को अंदर आने देता, कुछ चीजों को नहीं आने देता था. सेल वॉल क्या कहता है, सब आ जाओ. इट इज लाइक फ्रीली परमिएबल, इट इज लाइक ओपन बुक. ये कहता है सब आ जाओ, कोई भी आ जाओ. ठीक है. नेक्स्ट, इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल. सेल्स देखिए कितने हार्ड होते हैं. सेल्स देखो मेरा टेबल कितना हार्ड है, मेरी स्किन देखो कितनी सॉफ्ट है. आप लोग भी सॉफ्ट हो गए आई बिलीव. तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट में सेल वॉल है, तो वो हार्ड है. ठीक है बेटा. हार्ड चीजें क्या करती हैं? बहुत हार्ड चीजें क्या करती हैं? वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है. बहुत हार्ड चीजें क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देती है. ठीक है. तो सेल वॉल गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस कॉल्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल, है ना बेटा. तो इसमें क्या होता है? इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. इट कंटेन्स द डीएनए और द हेरेडिटी मटेरियल. इसमें क्या होता है बेटा? डीएनए और हेरिडिटी. आपको सर माइंड मैप तो बना दो बेटा. बनाएंगे, पहले मैं आपका रिफ्रेश कर देता हूँ ना ब्रेन में. सब पीछे चला गया होगा ब्रेन में. वी विल ड्रॉ माइंड मैप. ठीक है ना. तो ये होता है डीएनए मेड अप ऑफ हेरिडिटी मटेरियल. ठीक है बेटा. इट कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये हमारे फादर है ना, हमारी मदर से हमारे अंदर कैरेक्टर्स क्यों आते हैं? क्योंकि ऑफ न्यूक्लियस. हमारे फादर का डीएनए और हमारी मदर का डीएनए हमारे पास थोड़ा थोड़ा आता है, तो उनके कैरेक्टर्स तभी हम में आ पाते हैं. क्यों आते हैं? न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, यही चीज हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है. सेल वॉल भी आता है हमारे पेरेंट्स से, सेल मेम्ब्रेन भी आता है, नहीं वो कुछ नहीं करता. माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी आते हैं, वो कुछ नहीं करते. बट क्या चीज हेल्प करती है कैरेक्टर्स को आने में? हमारी एक नाक क्यों है? क्योंकि हमारे फादर मदर की एक नाक थी. हमारे 2 कान क्यों हैं? समझ पा रहे हो? मेरा मैप अच्छा ठीक है. अगर आपको मेरे को बनाना है, ठीक है, ये मैं हूं. ठीक है. अगर आपको मेरे को बनाना है तो आपको मेरे कान का मैप चाहिए, आपको मेरे हाइट का मैप चाहिए, आपको मेरे बालों का मैप चाहिए. ठीक है. तो ये कहां से मिलेगा? ये मेरे डीएनए में मिलेगा. और ये मेरा डीएनए कहां से आया? आधा मेरे फादर से है, आधा मेरी मदर से है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इट इज द हेरिडिटी मटेरियल. देन इट रेगुलेट्स द सेल फंक्शन. ये सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है. ये सेल को बताता है कि क्या करना है आपको. सेल डिवाइड करना है या प्रोटीन बनाना है, ये बताता है सेल को कि क्या करना होता है. ठीक है. इट कंटेन्स क्रोमोसोम विच इज द हेरिडिटी मटेरियल. ठीक है बेटा. आगे चलते हैं. साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मतलब ये कंटेंट ऑफ द सॉइल होता है. मतलब इमेजिन कर लो सेल है, सेल के अंदर एक जली सी चीज भरी हुई है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं. तो ये जली सी चीज क्या है बेटा? ये है साइटोप्लाज्म. तो जली सी चीज इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, है ना बेटा. वाटर, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स. इसमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन्ड इन द सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. डिफरेंट ऑर्गेनल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है. हमने देखा था, अभी हम देख ही रहे हैं. तो सारे ऑर्गेनल्स इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, है ना. तो ये सब सेल वॉल में, सेल साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं, है ना. इसमें सारा रॉ मटेरियल भी होता है, जो भी चीज़ बनाने के लिए. जैसे कि आपको बिरयानी बनानी है तो राइस चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, है ना. देन यू नीड नॉन वेज. तो वो सारा इसी में फ्लोट करता रहता है. अगर मेरे को प्रोटीन बनाना है या मेरे को एंजाइम बनाना है, सारा रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में मिलेगा. ठीक है. वेरी गुड. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या होता है सर? बेटा देखो, ये न्यूक्लियस है हमारा. ये एंटेना सा जो चल रहा है ना, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये एंटेना क्या करता है? ये एंटेना चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है. मतलब यहाँ पे जो चीज बनी उसको यहाँ लेके जाएगा. ऐसे रोड नहीं होती, हाईवे टाइप होता है. दूसरा, आपने देखा होगा हाईवे पे लोग बैठ के खाना वाना खाने लग जाते हैं. तो इट प्रोवाइड्स साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस, है ना. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है. The endoplasmic reticulum is of 2 types. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ. फर्क क्या होता है बेटा? रफ में होता है राइबोसोम. ये देख रहे हो जो गोले गोले से बनाया है मैंने. रफ में होता है राइबोसोम, इसमें होता है नो राइबोसोम. तो राइबोसोम हमें पता है क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन लिपिड synthesis. समझ पा रहे हो? रफ एंडोप्लाज्मिक हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस. समझ आ गया? वेरी गुड. और क्या चीजें करता है ये? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है,
चीज़ों को रिएक्शन की साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है। सेल का फ्रेमवर्क होना चाहिए ना, जैसे कि मेरा स्केलेटन है, अगर स्केलेटन डालोगे क्या हो जाएगा, मैं कुगली उगली कुछ रहूँगा, मैं से चिपक जाऊंगा डिट्टो की तरह। उसी तरह ये सेल को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। गोल्गी, इट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल, पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी इज द पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल, है ना बेटा। फ्लैटेंड लुक्स लाइक फ्लैट मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन को ना फोल्ड करो ना वैसा लगता है ये, मतलब ट्यूब्स होती हैं इसमें, और मेम्ब्रेन को ना फोल्ड कर लो, अगर आप मेम्ब्रेन को फोल्ड कर लोगे ना तो वो ऐसा दिखेगा, फोल्डेड मेम्ब्रेन, इट इज लाइक द फोल्डेड मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। एंड ट्यूब्यूल्स, synthesis and secretion of enzyme, what does it do, it helps in synthesis and secretion of the enzyme, synthesis and secretion of the enzymes and hormones, है ना बेटा। acrosome of the cell, formation of acrosome of the sperm, acrosome क्या होता है बेटा, देखो दादा, ये होता है, ये ना स्पर्म होता है बेटा, इट्स अ सेल विच इज द मेल गैमीट, ठीक है, ये टॉप पोर्शन को हम कहते हैं एक्रोसोम। अब एक्रोसोम में क्या होता है बेटा, एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे विच हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर इनटू द एग, ये स्पर्म को हेल्प करता है एग के अंदर जाने में और फर्टिलाइज करने में, तो एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम। तो ये एंजाइम कौन बनाता है एक्रोसोम वाला, ये बनाता है गोल्गी, गोल्गी, और क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाता है, लाइसोसोम क्या होता है, सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल, है ना, ये भी कौन बनाता है, गोल्गी बनाता है। लाइसोसोम एज आई टोल्ड यू, है ना बेटा। मेम्ब्रेन होते हैं, ये बस एक मेम्ब्रेन जिसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस, they what do they do, they protect the cell from foreign substance। और मान लो अगर खुद का सेल बीमार हो जाए, खुद का सेल इस बीमार बियॉन्ड रिपेयर, what will happen, the lysosome will burst inside the cell and destroy the entire cell, the lysosome will burst inside the cell and destroy the entire cell, that is why they are called as suicide bags of the cell। I hope you're understanding, है ना बेटा। फॉरेन सब्सटेंस को भी किल करता है, बट अगर मान लो सेल डिस्ट्रॉय हो गया ताकि न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो सके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता ही है सर, इसको कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो ये क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो बेटा इसमें ना ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, दिस एंड क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेनस, both of them are double membranous, है ना। they have their own DNA, they have their own DNA inside, guys what do they have, they have own DNA, they have their own DNA, समझ पा रहे हो, they have their own DNA present in there, है ना। तो वेरी गुड, डीएनए जनरली न्यूक्लियस में होता है, बट यहाँ पे भी इनके पास भी थोड़ा सा डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके पास राइबोसोम्स भी हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स भी हैं, दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस मतलब खुद थोड़े काम ये खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डीएनए और राइबोसोम है। थोड़े से आउट ऑफ 100 वर्क्स 20 वर्क से खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा डीएनए और राइबोसोम है। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे क्या होता है गाइस, एटीपी प्रोडक्शन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एज इन एटीपी प्रोडक्शन हैपेंस ओवर हियर, है ना बेटा। वेरी गुड, ये बताता है कि बेटा एटीपी प्रोड्यूस करना है, दैट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड, अबे प्लास्टिड्स गाइस आर फाउंड स्पेशली इन द प्लांट, एनिमल्स में नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट and yes guys leucoplast, chloroplast, chromoplast and leucoplast। you'll be like, so what is this? chloroplast बेटा मतलब green colored pigment, chloroplast is green colored, chromoplast मतलब colored, chromoplast मतलब colored, मतलब जैसे कि रेड कलर, येलो कलर, ये वाला कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ द फूड, ये व्हाइट कलर का होता है और हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ द फूड। ग्रीन कलर हेल्प करता है ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में, हमें पता ही है ना, ग्रीन कलर हो गया, क्लोरोफिल हो गया, तो फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पार्ट्स, रेड कलर रोज, लिली, ये सब क्यों होते हैं। येलो कलर का हमारा क्या होता है, येलो कलर का हमारा कैप्सिकम होता है, रेड कैप्सिकम होता है, ये सब क्यों होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के जैसे होते हैं, ठीक है बेटा। ल्यूकोप्लास्ट होता है जो स्टोर करता है, ये वाला प्लास्टिड जो खाने को स्टोर करता है। तो कहीं यहाँ पे एक और चीज देखो,
इसके पास भी डीएनए होता है, इसके पास भी राइबोसोम होता है, तो ये भी क्या हुआ, सेमी ऑटोनॉमस। तो दो सेल ऑर्गेनल्स जो सेमी ऑटोनॉमस है वो कौन कौन है गाइस? दो सेल ऑर्गेनल्स जो सेमी ऑटोनॉमस है, एक हो गया हमारा प्लास्टिड, और दूसरा हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल, दीज आर गाइस स्टोर हाउस ऑफ द सेल, इसको कहते हैं हम स्टोर हाउस ऑफ द सेल, है ना। ये क्या होता है बेटा, इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। इसके अंदर कुछ भी भर सकते हो आप, फैट डाल दो, लिपिड डाल दो, एंजाइम डाल दो, इट कैन स्टोर एनीथिंग, वेस्ट प्रोडक्ट डाल दो, है ना बेटा। इट गिव्स टर्जिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी मतलब बेटा देखो ये ना, इसको सेल की मेम्ब्रेन को ऐसे पुश करके रखता है, मतलब उसको ऐसे स्ट्रॉन्ग रखता है, हट जाएगा तो ऐसे श्रिंक हो जाएगा ना, उसको टर्जिडिटी देके रखता है ना। यस देख रहे हो, ये हमारे सेल, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके। तो इट हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, इट हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन गाइस। लेट मी शो हाउ आई वुड हैव ड्रॉन अ माइंड मैप। ओके, आई वुड हैव डन सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सेल ऑर्गेनल लिखा मैंने। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल वॉल, है ना बेटा, उपसी, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, सेल सेलुलोज का बना होता है ना, प्लाज्म प्लांट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, है ना, फ्रीली परमिएबल, बस छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाओ सेल मेम्ब्रेन, यू विल राइट, व्हाट विल यू राइट, सेल मेम्ब्रेन में क्या लिखोगे? यस गाइस, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे लिख देंगे हम एसपीएम, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो पता है ना एसपीएम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर नहीं पता होगा फिर मैं देखूंगा, ठीक है, तो यू शुड राइट, मेक योर ओन नोट्स कि कैसे लिखे, बट यहाँ डोंट राइट एंटायर सेंटेंसेस, ठीक है। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, रेगुलेट्स मटेरियल कमिंग इन एंड आउट ऑफ सेल, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, यू कैन राइट पावर हाउस, यू शुड नॉट राइट पावर हाउस ऑफ द सेल, बस राइट पावर हाउस, ठीक है। कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम, है ना बेटा, इट हैज डबल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर आ गया गोल्गी, गोल्गी क्या बेटा, पैकेजिंग हाउस, ठीक है, गोल्गी हो गया पैकेजिंग हाउस, ठीक है बच्चे। फिर गोल्गी हो गया पैकेजिंग हाउस, देन यस इतना ही रख सकते हैं, मतलब इसके लाइसोसोम बनाता है, ये लाइसोसोम, इसने लाइसोसोम बनाया है ना, ये एक्रोसोम ऑफ स्पर्म बनाता है, ठीक है, ये लिख सकते हो। फिर देन प्लास्टिड, है ना, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, है ना बेटा, प्लांट सेल में होता है। देन और क्या होता है इसमें? देन इट इज ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, है ना बेटा, ये हो गया। देन व्हाट एल्स आई कैन डू, क्रोमो ये हो गया, ठीक है। प्लास्टिड्स में और क्या होता है? दे ऑल्सो हैव डीएनए एंड राइबोसोम, है ना, तो इट इज ऑल्सो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। आगे और क्या बचा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, स्मूथ SCR एंड रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्या बनाता है? लिपिड, रफ बनाता है प्रोटीन, ठीक है, स्मूथ बनाता है लिपिड, रफ बनाता है प्रोटीन, ठीक है। और क्या बचा? न्यूक्लियस हमारा सबसे फेवरेट, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे लिखूंगा, है ना बेटा। न्यूक्लियस क्या होता है? DNA, हेरिडिटी मटेरियल, है ना, हेरिडिटी में हेल्प करता है। तो गाइस कैन यू सी, आई एम जस्ट राइटिंग पॉइंटर्स। देन अब मेरे को ना सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पता है कि एक क्वेश्चन आता है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कौन सा होता है? एक तो सेल वॉल होता है, एक प्लास्टिड होता है एंड वैक्यूल होता है ना। वैक्यूल कहाँ लिखे? वैक्यूल, चलो गाइस इट्स एन आर्ट, ठीक है, फिटिंग एनीथिंग एनीवेयर। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है? यहाँ पे लार्ज इन प्लांट, लार्ज एंड सेंट्रल इन प्लांट, स्मॉल इन एनिमल। यूल बी लाइक से ये तो बहुत ही गंदा गंदा लग रहा है बेटा। देखो इट इज फॉर मी, ठीक है, मुझे पता है कि ये वाले पॉइंट एग्जाम में आएंगे, तो आई हैव रिटन इट लाइक दिस। आर यू टू अंडरस्टैंड? तो मतलब
आई नो इट इज वेरी शैबी बट दिस इज द होल पर्पस ऑफ मेकिंग, मतलब शैबी बनाना नहीं, द होल पर्पस इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड इट, मतलब दिस इज फॉर मी नॉट यू. तो व्हेन यू विल मेक योर नोट्स यू कैन मेक श्योर कि यू मेक इट बेटा ब्यूटिफुली अनलाइक मी. ठीक है, इतना गंदा मत बनाना. तो दिस इज हाउ. एंड इफ यू मिस आउट ऑन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे, तो व्हाट विल यू राइट? यू विल पुट अ हैशटैग ओवर हियर एंड जस्ट ऐड इट. मतलब अब मैंने ना ये नोट्स बनाए, मैं पढ़ के गया, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया जो मेरे को आता ही नहीं था. इट वॉज ऑन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. तो व्हाट विल आई डू? आई विल कम एंड राइट अ नोट अबाउट हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक में क्या होता है? एक्सऑस्मोसिस होता है. एक्सऑस्मोसिस, सेल क्या होता है? सेल श्रिंक कर जाता है. ठीक है, तो आई विल जस्ट राइट इट सिमिलरली एंड आई विल मेक पुट अ बॉक्स ओवर अराउंड इट. यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, आई कुड हैव पुट इट ओवर हियर, बट या तो वेयर एवर यू फाइंड यू स्पेस एंड यू पुट इट ओवर हियर. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि योर नोट्स विल गेट कंप्लीटेड ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम. इट ऐसा नहीं है कि आज आपने बनाया तो आपके नोट्स कंप्लीट हो गए. तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाए, मुझे लगता है मेरे नोट्स कंप्लीट ही नहीं है. बेटा वो नहीं होंगे, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन इन्फॉर्मेशन व्हिच यू कैन फिट इन. There will always be a question which you have not answered. So you can add that questions which you have not answered so that in future if it comes again, तब नहीं छोड़ना. ठीक है, तो yes you can see this also. ये तो बहुत ही क्रिंजी है, इतना ज़्यादा मत बनाना. ठीक है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है. दिस वुड वर्क आई गेस. इसको थोड़ा और नीट कर लो तो इट विल वर्क, है ना. यस एंड यस गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको सेशन कैसा लगा, है ना. एंड यस डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.